Hello students, welcome to our channel SGTN's online tutorial. Students, आज हम chapter 14 statistics for standard 10th and I'm going to teach you the first exercise, mean. How to find the mean of a grouped data. Now students, mean can be found out by three methods. There are three different methods to find out mean. One is direct method, assumed mean method, and the third and the last one is step deviation method. Right students, जैसे हमने chapter 3 linear equations में सीखा है that we can solve a pair of linear equation either by elimination or substitution या cross multiplication. But the answer remains the same in all. In the same way, जब हम मीन फाइंड करेंगे किसी भी मेथड से, आंसर विल ऑलवेज रिमेन द सेम. मीन क्या होता है? मीन मीन्स अ एवरेज. इट रिफर्स टू द एवरेज ऑफ द गिवन डेटा. सो लेट्स बिगिन दिस वेरी इजी टॉपिक, मीन. सो फर्स्ट स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू द डायरेक्ट मेथड. नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट एक्सरसाइज 14.1, फर्स्ट सम. A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. अब जैसे यहाँ पे हमने देखा that 20 houses have been selected और उन 20 houses में किस house में कितने plants हैं has been noted out. We have to find the mean of this data. Now students, ये जो number of plants हैं जिसको हम classes कहते हैं, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, and these are the frequencies. Number of houses, this is the frequency. So first these two columns I'm going to write down in my notebook, in my answer sheet. So these are number of plants and these are number of houses. Thereafter what I need to do is, ये जितनी भी frequencies है ना, इन सबको मैं add up कर रहा हूँ, plus कर रहा हूँ. 3 plus 1 4, 4 plus 5 9, 9 plus 6 15, 15 plus 2 17, 17 plus 3 20. So n equal to 20. n means sigma fi. Sigma fi लिखो या n लिखो, meaning is same. Next you have to find xi. What is xi? xi का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू, मिड वैल्यू, या आप इसको क्लास मार्क भी बोल सकते हैं. What does it mean? It means add up lower limit and upper limit and divide by 2. मतलब 0 और 2 को प्लस करो and then divide by 2. So just think here, 0 plus 2 upon 2. So 0 plus 2 upon 2, so that will be 2 upon 2. Answer would be 1. In the same way, 2 plus 4 upon 2. 2 plus 4 is 6. 6 upon 2 is 3. तो देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है. 3 और 1 में डिफरेंस कितना है? 2 का. सो 2 2 ऐड करते जाइए. कीप एडिंग 2 2 फर्दर. तो ये आपको मिल गया क्लास मार्क. एंड नाउ द लास्ट कॉलम इज fi xi. It means 1 you will multiply with 1. 1 1s are 1, 2 3s are 6, 1 5s are 5, 5 7s are 35. fi और xi दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है. 6 9s are 54, 11 2s are 22, 3 13s are 39. तो एक बार आपको सारे fi xi फाइंड कर लिए. Now add them. So we are going to add 1 plus 6 is 7, 7 plus 5 is 12, 12 plus 5 17, 17 plus 4 21, plus 2 23, 23 plus 9 32, 3 carry, 3 plus 3 is 6, 6 plus 5 11, 11 plus 2 13, 13 plus 3 16. So after making this table, now x bar equal to, x bar means mean.
आप इसको मीन भी लिख सकते हैं, आप इसको एक्स बार भी लिख सकते हैं. ओके, सो आई एम राइटिंग बोथ. सो मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन. इट मीन्स 162 अपॉन 20. अब इन दोनों को मैं 2 से डिवाइड करता हूं. 2 10s and 2 81s. So final answer is 8.1. So the mean of given data is 8.1 plants. अब ये प्लांट्स कैसे आया सर? देखिए यहां पे जो हमारा डेटा था ना, it was regarding number of plants. I repeat, it was regarding number of plants. So the first column always will tell you कि आपका जो आंसर आया उसके पीछे आपको जो यूनिट लगानी है वो क्या लगानी है. दैट विल बी गिवन टू यू बाय द फर्स्ट कॉलम. सो 8.1 प्लांट्स. कंफर्म स्टूडेंट्स? सो दिस इज सम नंबर 1, एक्सरसाइज 14.1. सो आई होप यू आर फाइंडिंग दिस वेरी इजी. डायरेक्ट मेथड काफी सिंपल है. लेट्स कम टू द सेकेंड सम of the same exercise 14.2. Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. तो ये उनकी डेली वेजेस हैं. वेजेस मतलब तनख्वाह, सैलरी. दिस आर इन रुपीज 100 to 120, 120 to 140 एंड सो ऑन. और ये नंबर ऑफ वर्कर्स है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ओके, फाइंड द मीन daily wages of the workers of the factory by using appropriate method. तो स्टूडेंट्स पहले मैं सिर्फ आपको सारे मेथड सिखा रहा हूं. मैं आपको पहले 3 सम्स डायरेक्ट मेथड से करवाऊंगा, देन 2 सम्स आई विल मेक यू डू विद अज्यूम मीन, एंड देन 3 सम्स विद स्टेप डिविएशन, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू दैट एग्जाम में कब कौन सा मेथड यूज करने का. ओके, तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट एंड तक देखिए सो दैट यू अंडरस्टैंड क्या कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करते हैं. रेडी? सो पहले मैं ये 2 कॉलम्स अपनी नोटबुक में कॉपी कर रहा हूं. आप भी प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए और इनको हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से. सो स्टूडेंट्स, दिस 2 फर्स्ट कॉलम्स वी हैव कॉपीड. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट वी हैव टू ऐड दिस. 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 + 6 20. So put 0 here. 2 carry. 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5. So n means sigma fi, that is 50. Then find class mark. 100 + 120 upon 2. सोचिए 100 + 120 220 और 220 upon 2 is 110. एक बार फर्स्ट क्लास मार्क मिल जाए, अब चेक करो क्लास साइज क्या है. एक क्लास में कितने नंबर्स हैं? सो 120 - 100 20. हर क्लास में 20 नंबर्स हैं. तो आप इसको 20 प्लस करते जाइए. कीप एडिंग 20. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई. fi यू नीड टू मल्टीप्लाई विद xi. तो इनको मल्टीप्लाई करके प्लीज राइट हियर. आप इस वीडियो को पॉज कीजिए अभी और इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए और फिर ही ये वीडियोस फर्दर देखिए. 12 × 110, राइट योर आंसर हियर. 14 × 130, राइट योर आंसर हियर. और फिर इन सबको प्लस कीजिए. एंड एट लास्ट डू दिस मेथड मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n एंड सी व्हाट आंसर यू गेट ऑफ सम नंबर 2. सो एज आई टोल्ड यू, सी fi xi I have multiplied and we found out sigma fi xi. ठीक है, just check whether it is matching with your answer or not. And now let's put the formula of mean. So 7260 divide by 50, 0 0 cancel. So if you divide 726 by 5, the answer would be 145.2. So the mean of given data is 145.2. Think of the unit. ये क्वेश्चन डेली वेजेस के लिए है. डेली वेजेस हमेशा किसमें है? सी द क्वेश्चन हियर इन रुपीस. सो आंसर वुड बी रुपीज 145.2. Okay students, rupees 145.2. So 1/3 sum we will take of direct method. This sum is slightly different. You know how? Just एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं.
द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी. द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f. सो इस सब में डेली पॉकेट मनी जो चिल्ड्रन को मिलते हैं इट इज गिवन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर ऑल्सो मेंशन हियर. अब इस क्वेश्चन की स्पेशल बात यह है कि मीन दिया हुआ है, ऑलरेडी मीन फाइंड किया हुआ है, मीन इज 18 और हमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है f. सो लेट्स सॉल्व दिस सम अगेन बाय डायरेक्ट मेथड. सो एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, पहले ये 2 कॉलम्स कॉपी कीजिए एंड द थर्ड कॉलम xi प्लीज प्रिपेयर इट xi. So see students, these 2 columns I have copied. Now as I have told you, after copying this 2 column, the third column will be of xi, means class mark. तो क्या करना है आपको, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है. 11 plus 13 is 24 and 24 divided by 2 is 12. Now please check एक क्लास में कितने नंबर्स हैं. 13 minus 11 is 2. Okay, there are only 2, class size is 2. सो हमें क्या करेंगे, इसमें 2 प्लस करते जाएंगे. सो 14, 16, 18, 20, 22, 24. And here let's multiply fi and xi. So 12 sevens are 84, 14 6s are also 84, 16 9s are 144, 18 13s are 254. I'm sorry, 234. 20 into f is 20f. 22 5s are 110 and 24 4s are 96. अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इन सबको प्लस करना है. बट याद रखना 20f इज अ अनलाइक टर्म, मतलब इन सबके पास f नहीं है तो और इसके पास f है, तो इसको ऐड मत करना. इसीलिए मैंने इसको थोड़ा साइड में लगा दिया ताकि आप जल्दबाजी में 20f को इन सब में प्लस ना कर दें. सो 20f एज इट इज, बाकी सबको मुझे प्लस करना है. 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 6 22, 2 carry 10, 18, 22, 25, 26 and 9 35, 3 carry 4 6 7. So sigma fi is 752 plus 20f. What about n? अब इसका टोटल देख लेते हैं सर. 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 + 3 25, 25 + 5 30, 30 + 4 34. So put 4 here, 3 carry. So 44 plus f as it is. Right students? Now the last step, put the formula of mean x bar equal to sigma fi xi upon n. How much is x bar? Value of x bar is 18. So 18 equal to sigma fi xi means 752 plus 20f divided by n. N is 44 plus f. So let's cross multiply. So 18 multiplied by 44 plus f equal to 752 plus 20f. So 44 18s are 792 plus 18f equal to 752 plus 20f. Right, so 792 minus 752 equal to 20f minus 18f. So 40 equal to 2f, f equal to 40 upon 2. The answer is 20. The missing frequency is 20. So students, यहाँ मैं आपको 3 सम्स कंप्लीट कर रहा हूँ डायरेक्ट मेथड से. अब क्वेश्चन ये है कि सर डायरेक्ट मेथड कब यूज करने का. So I'll tell you. If you find that the multiplication of fi and xi is very easy, कि हाँ सर मुझे fi और xi का मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी लग रहा है, then always use direct method. I repeat, whenever multiplication of fi and xi is very easy, देखो ये मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी है,
फर्स्ट सम में भी मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी था एफ आई और एक्स आई का. इन दैट केस वी यूज डायरेक्ट मेथड. स्टूडेंट्स देयर इज वन मोर केस इन विच वी हैव टू यूज डायरेक्ट मेथड. उसके लिए प्लीज सब लोग सम नंबर 8 पे आइए. आफ्टर 1 2 3 आई एम टेकिंग सम नंबर 8. सम नंबर 8 थोड़ा डिफरेंट है. प्लीज आप इसको एक बार पढ़िए. यू विल कम टू नो व्हाई इट इज डिफरेंट. इस सम में जो क्लास है ना उस पर फोकस कीजिए. 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40. Look at the class size. 6 minus 0, 6. इसका क्लास साइज 6 है. 10 minus 6, 4. इसका क्लास साइज 4 है. 14 minus 10, 4. 20 minus 14, 6. 28 minus 28. So see, सबका क्लास साइज डिफरेंट है. और बिकॉज सबका क्लास साइज डिफरेंट है तो ऐसे सम्स को कंपल्सरीली हम लोग डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे. बिकॉज डायरेक्ट मेथड से वी विल गेट द आंसर वेरी फास्ट. So, when you will use direct method, number 1, please note down, if the multiplication of fi and xi is very easy, then you will use direct method. And number 2, whenever the class size are not equal, then we will use direct method. Confirm, students? So first everybody please copy these 2 columns. And third column आपको xi का बनाना है, क्लास मार्क का. ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले ये 2 कॉलम्स और xi का कॉलम रेडी कीजिए. ओके, सो आई हैव कॉपीड दिस 2 कॉलम्स एंड लेट्स फाइंड n नाउ. 1 plus 7 8, 8 plus 4 12, 12 plus 4 16, 16 plus 3 19, 19 plus 1 20, 2 carry, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. So value of n is 40. Now look at xi. 0 plus 6 upon 2. Answer will be 3. 6 plus 10 upon 2. Answer would be 8. अब स्टूडेंट्स ऐसे सम्स में है ना, इसका डिफरेंस 5 है तो 5 5 5 5 ऐड मत करना. बिकॉज सबकी क्लास साइज डिफरेंट है. सो हर एक का xi आपको इंडिविजुअली निकालना है, सेपरेटली फॉर्मूला लगा के. 10 plus 14 24, 24 upon 2 is 12, 14 plus 20 34, 34 upon 2 is 17. ठीक है, अब आप सोचिए आगे. 28 plus 8 36, 36 and 30 66, that will be 33. ये स्टूडेंट्स, तो हमें xi मिल गया, हमें fi मिल गया. अभी हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. रेडी? सो दिस विल बी 33. 10 8 जा 80, 12 7 जा 84, 17 4 जा 68, 24 4 जा 96, 33 3 जा 39. At last 39 1 जा 39. So sigma fi xi, let's note it down. 3 plus 4 7, 7 plus 8 15, 15 plus 6 21, 21 plus 9 30, 30 plus 9 39. 3 carry, 6 and 8 14, 14 and 8 22, 22 plus 6 28, 28 plus 9 37, 46 49. So I got 499. So mean equal to sigma fi xi upon n. So 499 डिवाइड बाय 40. तो पहले मैं दोनों को 4 से डिवाइड कर लेता हूँ. ओके, 4 10 जा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 19 लेफ्ट, 4 4 जा 16, 3 लेफ्ट 0, 4 7 जा 28. सो बिकॉज अपॉन में 10 है, पॉइंट एक डिजिट आगे जाएगा. Your final answer is 12.475. Okay, अब students 12.475. Let's think of the unit. Number of days. So answer के end में the unit will be days. So mean number of days we have to find. So mean of given data is 12.475 days.
फाइन स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको सम नंबर 1, 2, 3 और सम नंबर 8 ये चारों सम्स डायरेक्ट मेथड से सिखा दिए हैं। आई होप यू फाइंड इजी। अब हम चलते हैं सम नंबर 4 की तरफ, विच आई वुड बी एक्सप्लेनिंग यू अकॉर्डिंग टू अज्यूम्ड मीन मेथड। नाउ स्टूडेंट्स, सम नंबर 4 ऑफ टेक्स्ट बुक, आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू यूज अज्यूम मीन मेथड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट्स एंड नंबर ऑफ वुमेन दे आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। फर्स्ट एज यूजुअल पहले हमें n फाइंड करना है। लेट अस ऐड देम। आई एम गेटिंग इट 30, यू चेक इट वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। नाउ फ्रीक्वेंसी पता है हमको, लेट्स फाइंड आउट मिड वैल्यू या क्लास मार्क कहते हैं xi। एड दिस टू 65 and 68, so you get 133 and 133 divided by 2 is 66.5। चेक करो इन सबके क्लास साइज सेम है और किसी भी एक क्लास का डिफरेंस चेक करो। 86 माइनस 83 इट्स कमिंग 3, तो 3 इसमें प्लस करते जाओ। कीप एडिंग 3 confirm, so this is xi। next column you have to find, because हमें इसको assume mean method से करना है, the next column is di। what does di mean? di का मतलब होता है deviation, and how to find deviation? xi minus a। what does a stand for? a stands for assumed mean। students, ये जो frequencies है ना, इनमें से कोई भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है, प्लीज चेक विच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 8। और 8 के सामने जो भी आपका क्लास मार्क है, जो भी xi की वैल्यू है, टेक इट एज a। आई रिपीट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 8। बाय मिस्टेक मैंने 3 के सामने की फ्रीक्वेंसी मार्क कर दी, 3 के सामने का xi मैंने मार्क कर दिया। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 8 के सामने जो xi है, व्हाट्स द वैल्यू? 75.5। इसको हमें a लेना है, राइट स्टूडेंट्स। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो भी xi है, दैट इज योर अज्यूम्ड मीन। करना क्या है, xi में से a को माइनस करना है, मतलब 66.5 में से 75.5 को माइनस करना है। तो अगर आप 66.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे, यू विल गेट द आंसर -9। सो हियर यू हैव टू राइट -9। फिर 69.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे, यू विल गेट -6। ठीक है, तो इस तरह आपको सबट्रैक्ट करना है। बट आई विल सजेस्ट यू दैट ये फॉर्मूला को ऊपर लिखिए, बट उसको यूज मत कीजिए। आप क्या कीजिए, a 75.5 इसके सामने 0 पुट कर दीजिए। क्लास साइज कितना था याद करो, यस क्लास साइज वाज 3। नीचे आप 3 प्लस करते जाइए और ऊपर भी 3 प्लस करते जाइए, बट 0 के ऊपर द साइन वुड बी नेगेटिव। ऑल नंबर्स विल हैव नेगेटिव साइन जो 0 के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसा करने से यू विल गेट द सेम आंसर जो आपको सबट्रैक्ट करने से मिलेगा। 66.5 माइनस 75.5 माइनस 9, 69.5 माइनस 75.5 माइनस 6। ए के सामने 0, नीचे जो भी क्लास साइज है उसको प्लस करते जाइए, ऊपर भी क्लास साइज को प्लस करते जाइए, लेकिन साइन माइनस के डालिए। नेक्स्ट कॉलम fi di। fi को di से मल्टीप्लाई करना है। आई रिपीट, fi को di से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू -9, 4 इंटू -6, 3 इंटू 3, 0 इंटू 8, 7 3s, 6 4s, and 9 2s। Confirm students? Now we have to find the total sigma fi di। So देखो, -24 + 24 कैंसिल हो जाएगा, -18 + 18 भी कैंसिल हो जाएगा,
बचेगा सिर्फ -9 और +21. सो +21 में से -9 करिए, यू विल गेट 12. सो सिग्मा FIDI इज 12. x bar इक्वल टू फॉर्मूला a प्लस sigma FIDI upon n. Whenever you are using assume mean method, this is the formula to find mean. Mean equal to a plus sigma FIDI upon n. What is a? The value of a is 75.5. Sigma FIDI is 12. N is 30. 75.5 as it is. हम 3 का टेबल अप्लाई करते हैं. 3 4s 3 10s. So 4/10 मतलब 0.4. Final answer 75.9. So the mean of given data is 75.9. क्या? What is 75.9? So 75.9 heartbeats per minute. The mean of given data is 75.9 heartbeats per minute. So let me write here heartbeats per minute. Am I clear, students? Everything is clear? So this is assumed mean method. ठीक है, इजी है. चलिए assume mean से हम सम नंबर 5 भी ले लेते हैं. In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. Varying मतलब different, not fixed. हर बॉक्स में अलग अलग मैंगोज थे. अलग अलग मैंगोज थे मतलब क्वांटिटी डिफरेंट थी. किसी में 50, किसी में 54, किसी में 58, किसी में 60. Right? The following was the distribution of mangoes according to number of boxes. It means there were 15 boxes जिसमें 50 से लेके 52 मैंगोज थे. 110 boxes with 53 to 55 mangoes and so on. Now students again look at this data. ये डेटा बाकी सारे डेटा से थोड़ा डिफरेंट है. कैसे बताता हूं. देखिए जो प्रीवियस सम किया, look at the first class. This class ends with 68. Upper limit is 68. और सेकेंड क्लास 68 से ही स्टार्ट होता है. दीज टू नंबर्स आर सेम. अगेन ये वाला क्लास सेकेंड 71 से एंड होता है और नेक्स्ट क्लास 71 से ही स्टार्ट होता है. सो सच टाइप ऑफ डेटा और सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. आई रिपीट, इस डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. ठीक है, फाइन. सो continuous frequency distribution. And if you look here, यहाँ पे ये क्लास 52 से एंड हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास 52 से स्टार्ट नहीं हो रहा है. ये क्लास 55 पे एंड हो रहा है, नेक्स्ट क्लास 55 से स्टार्ट नहीं हो रहा है. सो सच डेटा इज कॉल्ड नॉन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नॉन कंटिन्यूअस. तो नॉन कंटिन्यूअस को पहले कंटिन्यूअस बनाने का कैसे, आई जस्ट टीच यू. लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करो. जो लोअर लिमिट है ना 50, उसमें से 0.5 माइनस करो. तो 50 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 49.5. और जो अपर लिमिट है 52, उसमें 0.5 प्लस करो. पहले नंबर में से 0.5 माइनस, इसमें से 0.5 माइनस और इसमें 0.5 प्लस. सेम वे 53 में से 0.5 माइनस और 55 में 0.5 प्लस. सो कीप डूइंग इट फर्दर एंड फर्दर. सो आपने क्या किया, यू हैव कन्वर्टेड अ नॉन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. राइट स्टूडेंट्स, let's go further. Now let's find the total of all the boxes. Right, so let us add up. 5 5 5 5 is 20. 2 carry.
3, 4, 7, 8, 10. Again 1 carry. So 400 is n. Next we need to find out xi, means mid value. 49.5 and 52.5 we have to add up and divide by 2. Answer is 51. पहले आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 102 मिलेगा. 102 का हाफ 51. किसी भी एक क्लास में आप चेक कीजिए, डिफरेंस इज ऑफ 3. 64.5 माइनस 61.5, डिफरेंस इज ऑफ 3. सो 3 ऐड करती जाएगी. कीप एडिंग 3 एंड देन फाइंड डेविएशन. तो जैसे मैंने आपको समझाया था, फर्स्ट फाइंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 135. उसके सामने वाले xi को a ले लीजिए. दिस इज a. इसके सामने पुट 0. एक क्लास में 3 नंबर्स हैं तो नीचे 3 प्लस और ऊपर 3 प्लस ही करना है, लेकिन साइन माइनस की देनी है. नीचे 3 प्लस करते जाना है और ऊपर भी 3 प्लस करना है, बट साइन माइनस की देनी है. नाउ मल्टीप्लाई fi di. 15 6 110 into -3. 135 zeros are 0. 115 threes are 345 and 25 6 are 150. First you add the positive numbers. So 345 and 150 I get 495 और नेगेटिव नंबर्स का टोटल है 420. दोनों का डिफरेंस फाइंड कीजिए 75. डिफरेंस मतलब दोनों को माइनस कीजिए. राइट. सो एक्स बार या मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन n. वैल्यू ऑफ a इज 57 प्लस 75 अपॉन 400. तो पहले हम इन दोनों को 5 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, एंड देन वी डिवाइड बाय अगेन 5. So 57 plus 3 upon 16. Right students, so we get 57 plus 3 upon 16. अब स्टूडेंट्स मैं रफ वर्क यहाँ करता हूँ, आप एग्जाम में यहाँ मत करना. डू इट ऑन द रफ पेज. 16 डिवाइड बाय 3. I'm sorry, 16 divide by 3. I had made a mistake. So let's start. 16 की टेबल में 3 is not possible. 16 ones are 16. 14 is left. Because no other number is left, put a 0 here. 16 8s are 128. 12 is left, 0. And finally 16 7s are 112. Okay, so we are left with 8 0 and 16 5s are 80. Now students, after point 3 digits are more than enough. ये 3 digits आपको मिल गए. अब ये जो digit है ना, this one, this digit is more than 5. मैं थर्ड डिजिट की बात कर रहा हूँ. It's more than 5. तो आगे +1 कर दीजिए. So 57 plus 0.19. Answer is 57.19. Okay, and write the statement at the end. The mean of given data is 57.19 mangoes. Total there are 57.19 mangoes in that's the average, that's the mean. Okay, average number of mangoes in the box is 57.19, sum number 5. So assume mean method आपको सिखा दिया. अब स्टूडेंट्स ये मेथड तभी यूज करना जब क्वेश्चन में लिखा हो कि सॉल्व और फाइंड द मीन बाय अस्यूम मीन मेथड. जनरली बोर्ड एग्जाम्स में दे डोंट मेंशन द नेम ऑफ द मेथड. यू कैन डू बाय एनी मेथड ऑफ व्हाट यू लाइक. ओके, सो इस मेथड को जब तक क्वेश्चन में पूछा नहीं हो तब तक इसको अवॉइड कीजिएगा. एंड लास्ट step deviation method I am teaching you. So please copy the first 2 columns of question 6. Daily expenditure is given to you and number of households is given to you. So ये 2 कॉलम को कॉपी करते हैं and let's solve by step deviation method.
सर जी डेली एक्सपेंडिचर and number of households. These two columns I have written first. The next column is XI, class mark. 100 plus 150 upon 2 is 125. Then 150 plus 200 upon 2 is 175. दोनों में 50 का डिफरेंस है तो 50-50 हम लोग ऐड करते गए एंड फ्रीक्वेंसीज का टोटल भी हमने फाइंड कर लिया है. इट इज 25. नाउ स्टूडेंट्स, स्टेप डिविएशन मेथड is a very good method where the calculations are very easy. कैसे? देखो, सबसे पहले ना आपको डिविएशन फाइंड करना है ui. ui कैसे फाइंड करते हैं? xi माइनस a अपॉन h मतलब क्लास साइज. अब अगेन ये फॉर्मूला सिर्फ आप ऊपर लिख लीजिए, उसको यूज मत कीजिए. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो 12 है ना, उसके सामने जो मिड वैल्यू है क्लास मार्क, इसको आप a ले लीजिए. ठीक है, ए के सामने पुट 0, नीचे एड 1 1 1 1 1 2 3 4 और ऊपर ऑल्सो एड 1 बट साइन माइनस -1 -2 -3 जितने क्लास हो उतने. ए के सामने 0, नीचे 1 2, ऊपर -1 -2. अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी यही आंसर आएगा. चेक करो, xi 125 माइनस xi 125 A 225, H मीन्स क्लास साइज. एक क्लास में चेक करो 50 नंबर्स है. सो 125 माइनस 225 माइनस 100 एंड माइनस 100 इफ यू डिवाइड बाय 50 -2 ही मिलेगा. ये करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली 0 1 2 -1 -2. लास्ट कॉलम fi को ui से मल्टीप्लाई करना है. 4 इंटू -2, 5 इंटू -1, 12 zeros are 0, 2 ones are 2 and 2 twos are 4. So sigma fi ui is minus 13 plus 4 plus 2 is 6. So sigma fi ui is minus 7. How much? Minus 7. Okay, now let's use the formula. Mean equal to a plus sigma fi ui upon n into h. What's the value of a? 225. Sigma fi ui minus 7, n 25. h मतलब क्लास साइज. एक क्लास में कितने नंबर्स हैं? 50. So 225, 25 ones are 25 twos are. What is 7 twos are? 14. So 225 में से if you subtract 14, you know what you will get? You will get 211. So mean of given data is, our topic was expenditure, खर्चा, is rupees 211. This is your final answer. तो स्टूडेंट, स्टेप डिवीजन मेथड एग्जाम में कब करने का? अगर आपको लगता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन टफ है, अगर मल्टीप्लिकेशन आपको इजी लगता है ना, तो ये सम भी डायरेक्ट मेथड से ही कर दो. लेकिन अगर आपको लगता है fi और xi का मल्टीप्लिकेशन टफ है, तो आपको स्टेप डिवीजन मेथड यूज करने का. ठीक है, अदरवाइज बाकी सभी सम्स में आप डायरेक्ट मेथड ही यूज कर सकते हो. इफ fi and xi मल्टीप्लिकेशन इज टफ, then and then use step deviation. Rest in all sums you can use direct method. एक और सम ले लेते हैं, सम नंबर 7 by this method. So concentration of SO2 and frequency. These two columns please copy it. So first two columns I have copied और सभी frequencies को मैंने प्लस कर दिया. I got 30. 0.00 plus 0.04 divided by 2, that is 0.02. सेम वे इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो, 0.06. तो यहाँ 0.4 का डिफरेंस आ रहा है, तो 0.04 प्लस करते जाइए. देखिए, पहला 0.02 आया, इसमें जो डिफरेंस है वो 0.04 का है. इसको इसमें से माइनस कीजिए 0.04, तो 0.04 सब में प्लस करते जाइए. ठीक है, अब
ये सम, बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी है तो मैं इसको स्टेप डिविएशन से नहीं कर रहा. अब आपको समझ में आ गया है, हम इसको डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं. सो 0.02 इंटू 4, 0.06 इंटू 9, 0.10 इंटू 9, 0.14 इंटू 2, 0.18 इंटू 4 एंड 0.22 इंटू 2. फिर इन सबको हम प्लस कर देंगे. सो 2.96 मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n. सो 2.96 डिवाइड बाय 30. दोनों को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं. 3 9 27, 26 लेफ्ट, 3 8 24, 20 left, 3 6 18, 6 6 6 6. It will keep going. So 9 point upon में 10 है, so point will go one digit further. So 0.098666. Right? Now point के बाद हमें थर्ड डिजिट देखनी है, this one. If it is more than 5 तो आगे +1 हो जाएगा. So my final answer is 0.10, या आप इसको 0.09 भी लिख सकते हैं. इट्स योर चॉइस. यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड क्यों किया, राइट? आई रिपीट, इसको 0.098 या 0.099 लिखेंगे ना, पीछे आपको आंसर 0.099 मिलेगा, राइट? एंड इफ यू राइट 0.10 दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट? सो मीन ऑफ गिवन डेटा. अच्छा, मैं आपको बता रहा था यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड क्यों किया, बिकॉज fi और xi का मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी है. सो मीन ऑफ गिवन डेटा इज 0.099 ppm, बिकॉज कंसंट्रेशन का यूनिट है ppm. कंफर्म स्टूडेंट्स? अब यहां पे 8th तो हमने पहले कर दिया, जो फाइनल सम है 9th. स्टेप डिविएशन से अभी तक हमने सिर्फ एक ही मेथड किया है, एक ही सम किया है. So let's do this 9th sum also by step deviation method, right? तो आपका ये full exercise complete हो जाएगा. And let's begin this, right? sum करने के बाद हम decide करेंगे that, मैं तो step deviation से कर रहा हूं, but आप मुझे बताइएगा कि अगर इसको direct method से करेंगे so that will be easy और step deviation will be easy. ठीक है, ये आप मुझे comment box पे लिख के बताइएगा for sum number 9. So let us write down. First copy the classes and frequency everyone. ठीक है, और उसके बाद xi भी फाइन कर लेना. Come on, do it fast. So first of all आप n फाइन कर लीजिए, right? So n is given 35. एंड xi लेट्स फाइंड आउट. इन दोनों को प्लस करना है. 100 अपॉन 2 इज 50. एंड बिकॉज यहाँ 10 का डिफरेंस है, हम लोग 10 प्लस करते जाएंगे. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 11 है. 11 के सामने जो xi है, टेक इट एज a. सो पुट हियर 0, नीचे 1 1 प्लस, ऊपर भी 1 1 प्लस बट साइन माइनस. फिर fi को ui से मल्टीप्लाई करना है. 3 2s are 6, 0 11s are 0, 8 1s are 8, 3 2s are 6. So नेगेटिव नंबर्स का टोटल -16, पॉजिटिव नंबर्स का टोटल +14, डिफरेंस इज -2. सो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन n इंटू h. वॉट इज a? 70. सिग्मा fi ui इज -2. ठीक है, h मतलब क्लास साइज. क्लास साइज इज 10. तो पहले इसको और इसको 5 से डिवाइड कर दो. 70 माइनस 4 अपॉन 7. सो 70 माइनस 0.57. सो लेट अस subtract 0.57. So you will get 69.53. So the mean of given data is 69.53
percentage, because here it is written in percentage. So students, here I complete the first exercise 14.1. How to find mode, how to find median, ये हमने वीडियोस ऑलरेडी आपको पहले से बता दिए हैं, पहले से आपके साथ शेयर किए हैं. सो दिस वीडियो ऑल्सो, जैसे आप हमेशा शेयर करते हैं, शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब इट. Soon we'll come with other videos. Bye bye and have a nice day. And yes, keep working hard and keep practicing maths.